So we move to the next session now. We'll talk about these things again. You know, this time when the conference agenda was getting made, so all the speakers, everybody that we had, if you remember, we had nobody's name there. Because I wanted to create a suspense. Because वो पहले से सब कुछ पता होता है, तो सब लोग अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं, right? I mean, they all, the excitement is gone. So we have been talking about lot of things yesterday, today, mindset, right? And how to cope up with it. So let me tell you, in the world of personal development, all trainers put together, including Tony Robbins, all NLP trainers, soft skill trainers, everybody put together, the ultimate test of human endurance, when we say mind, body, skill, soul, everything put together, the ultimate test of human endurance is mountaineering. It is people's dreams. Some of the best NLP trainers dream that I can climb, because that's the toughest test. Your mindset, physical capability, skills, all those things are required, right? Mental agility. It is the arena where your mindset, identity, resilience, discipline, courage, and emotional mastery are tested every single second and for days altogether. If you think about it deeply, a mountaineer fights the exact same battles that we as image consultant and soft skills trainers help our clients overcome. The battle between fear and confidence. The battle between limitation and possibility, the battle between who we were and who we must become. And that is why today is very special. Because today we are not just welcoming a speaker, we are welcoming a symbol of identity redesign in its purest and most powerful form. A woman who began her mountaineering journey not in her teenage years, not in her 20s, but in her late 30s. At an age where society tells most women to slow down, settle in, and stop dreaming. Instead, she chose to rise above expectations, rise above limitations, rise above everything that said you can't. At the age of 48, she became the oldest Indian woman to summit Mount Everest. Standing 29,032 feet above sea level, touching the sky and rewriting what was possible. But she did not stop at the top of the world. She went on to become the first Indian woman to complete the 7 Summits Challenge, climbing the highest peak on each continent, which is Mount Everest in Asia. I hope I can pronounce it right. Aconcagua in South America. Denali, which was earlier called Mount McKinley in North America. Kilimanjaro in Africa. Elbrus in Europe. Vinson Massif in Antarctica. And Puncak Jaya in Australia. Each one of these peaks represent a different climate, a different terrain, a different danger, and a different version of herself she had to become. Her achievements have been honored with the Padma Shri, the Tenzing Norgay National Adventure Award, and multiple national and international recognitions. But beyond the records and awards, what makes her truly remarkable is something much deeper. She is living proof that identity is not what you are born into. It is what you rise into. She transformed her own life, and today she dedicates her time to inspiring and training others, especially women and young people, to believe in their own untapped capacity for greatness.
So, ladies and gentlemen, in a conference where we are celebrating transformation, identity, independence, impact, and inner growth, there could not have been a more perfect speaker. Please join me in giving a warm and heartfelt welcome to a true icon of courage, resilience, and human potential, Padma Shri Shri Premlata Agarwal. सबसे इजी भाषण देना नहीं है, माउंटेन क्लाइम करना इससे ज़्यादा इजी है मेरे लिए। सभी को मेरा अभिनंदन, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सब बोलते हैं प्रेमलता अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, लेकिन उसके पहले मैं एक बेटी हूँ, एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ, एक गृहिणी हूँ, और उसके जज्बे ने ये सब किया। मेरा अचीवमेंट मेरे अकेले का नहीं है, इसमें बहुत लोगों का सपोर्ट है। सबसे पहले मेरे गुरु बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल जी का नाम तो सबने सुना होगा। टाटा स्टील जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे सारे अभियान को स्पॉन्सर किया। भगवान जिनका हर मुश्किल में मुझे जिन्होंने साथ दिया। मेरे माता पिता जिन्होंने सिखाया दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर जिन्होंने जो बोलते थे बहुएं केवल खाना बनाने के लिए नहीं है। मेरे हस्बैंड और मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल, पूरा इंडिया, सबका इतना सपोर्ट था, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं माउंटेनियर बनूंगी और इतना कुछ कर पाऊंगी। मेरा जन्म दार्जिलिंग से 20 किलोमीटर दूर एक बहुत खूबसूरत से गांव में हुआ था। बचपन से मुझे स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी। स्कूल के हर इवेंट में मैं पार्टिसिपेट करती थी, विशेष करके दौड़ में। मेरा जन्म पहाड़ों में ज़रूर हुआ था, लेकिन एडवेंचर से मेरा कोई नाता नहीं था, कोई नाता नहीं था। मुझे तो अंधेरे से डर लगता था, ऊंचाई से डर लगता था, बहुत ही डरपोक टाइप की लड़की थी। स्कूल के रेस में पार्टिसिपेट ज़रूर करती थी, लेकिन हमेशा लास्ट आती। दौड़ में सब फ्रेंड बोलते थे, मोटी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कब के हो चुके हैं, तू रुक जा। लेकिन मैं रुकती नहीं थी, अपना रेस ज़रूर कंप्लीट करती थी। बस ये आदत ज़रूर थी कि कुछ भी हाथ में लिया है तो उसे कंप्लीट ज़रूर करना है। हर साल सोचती इस साल नहीं तो अगली साल ज़रूर जीतूंगी, लेकिन अगली साल फिर वहीं हार। ड्राइंग रूम में अपने भाइयों की ट्रॉफ़ी देखती थी, बहुत ही ललचाई नज़रों से। सोचती थी काश मेरे नाम की भी कोई ट्रॉफ़ी होती। यही सोचते सोचते 18 साल की उम्र में शादी हो गई। जीतना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन आज से 40 साल पहले घर वालों ने कहा शादी करके कौन सी तुम्हें नौकरी करनी है। उस समय मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। शादी करके टाटा आ गई जमशेदपुर, और बस
शादी के बाद 2 बेटियां हुई, पूरी तरह से हाउसवाइफ थी, जॉइंट फैमिली। लेकिन मन में कुछ था, कुछ कमी थी कि मुझे कुछ बनना है। फिर सोचा मैं तो कुछ नहीं बन पाई, चलो बेटियों को ज़रूर कुछ बनाऊंगी। जब वे बड़ी हुई तो उन्हें वहीं पर एक जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर लेके जाती थी। वो लॉन टेनिस खेलती थी और मैंने वहीं पर फिटनेस सेंटर ज्वाइन कर लिया था। उस समय मुझे पता नहीं था कि स्पोर्ट्स में जीतने के लिए फिटनेस का होना कितना ज़रूरी है। मैं मोटी सी अनफिट लड़की कैसे किसी का मुकाबला कर पाती। लेकिन उस समय रियलाइज़ हुआ तो फिटनेस सेंटर ज्वाइन किया और वहीं मेरी मुलाकात बचेंद्री पाल जी से हुई और उन्होंने कहा कि तुम एडवेंचर ज्वाइन कर लो। और उस समय आज से 25 साल पहले एडवेंचर स्पोर्ट ज्वाइन करना तो बहुत बड़ी बात थी। इतना इंडिया में पॉपुलर भी नहीं था और हमारे कम्युनिटी में 2 बच्चों की माँ, हाउसवाइफ, उसके लिए ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो गर्मी की छुट्टी थी, बड़ी बेटी के साथ मैं गई। मैंने घर में कहा कि बेटी को बचेंद्री पाल जी बोल रही है कि उत्तरकाशी एडवेंचर के लिए जाने, तो साथ में मैं भी चली जाती हूँ। तो घर वालों ने सोचा चलो बेटी के पास साथ जा रही है तो चले जाओ। तो वहाँ से आने के बाद तो पूरी दुनिया चेंज हो गई। पहले किटी पार्टी में जाना होता तो घंटों तैयार होती थी, मैचिंग के नेल पॉलिश, मैचिंग के गहने, सब कुछ। अभी तो देखो साड़ी के साथ शूज़ पहने हैं क्योंकि इसी में कंफर्टेबल है। उस समय तो चाहे पैर दर्द हो, कुछ हो, हील पहनना ही है, मैचिंग के गहने पहनना ही है, सारा कुछ। ठंड लग रही हो, स्लीवलेस साड़ी पहननी है, सारा कुछ। उसके बाद तो सारी दुनिया चेंज हो गई कि अरे हमें तो कुछ नहीं चाहिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो पहनो, लोग क्या कहेंगे वो भूल जाओ, वो अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, तभी आप ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हो। और उसके बाद तो सारा किटी पार्टी सारा कुछ छोड़ दिया क्योंकि मुझे फिटनेस में भी ध्यान देना था और एक हाउसवाइफ घर परिवार तो देखना ही था। क्योंकि आप जब कुछ अचीव करते हो तो परिवार को लेके ही चलना पड़ता है, तभी अचीव कर पाओगे। सबका सपोर्ट तो ज़रूर चाहिए। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद बचेंद्री जी ने कहा कि तुम बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कर लो। तो 1 महीने की छुट्टी रहती है, समर हॉलीडे, और मेरा मैके दार्जिलिंग था तो वहाँ बेटियों को वहाँ छोड़ा और मैं बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए गई तो 2001 में। तब तक 35 इयर्स हो गया था। एंड तब वहाँ मैंने देखा कि सब कोई भी, मैं तो सबसे बड़ी एज की हूँ, 60, 18, 19, 20s की लड़कियाँ हैं। कोई एयरफोर्स से आई है, कोई एनसीसी से आई है, कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, और मैं 1-2 बेटियों के माँ, एक सिंपल गृहिणी। मैंने तो बताया ही नहीं कि मेरी शादी हो चुकी है और 2 बेटियाँ भी हैं। और वहाँ उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा तो बोला आप क्या बेसिक कोर्स के लिए आई है? आपको पता है ये क्या होता है? बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। 25 kg लोड लेके अप हिल में चलना पड़ता है, सुबह 4 बजे से रात तक, एकदम पूरा टाइट शेड्यूल। मैंने कहा कि मुझे टाटा स्टील ने भेजा है, बचेंद्री जी ने भेजा है। तो वो लोग हंस के रह गए कि 2-4 दिन में वापस चली जाएगी। और हम लोग 51 थे, उसमें केवल 24 ही बचे थे। एनसीसी वाले भी चले गए थे, एयरफोर्स वाले तक वापस चले गए थे,
और बहुत टफ ट्रेनिंग थी, उंगलियां कट गई थी वो रॉक क्लाइंबिंग में। शाम होते रोने लग जाती थी, ये कहाँ फंस गई, ये मेरा फील्ड नहीं है। मैंने डायरी में लिखा कि ये मेरा फील्ड नहीं है, मैं कभी माउंटेन नहीं आऊँगी। लेकिन बस एक आदत थी, जो काम दिया है उसे ऑनेस्टी से पूरा करना। और जब कोर्स कंप्लीट हुआ, 1 मंथ का कोर्स था, बेस ट्रेनिंग के लिए मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। और जब बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड लेके जमशेदपुर आई, बचेंद्र पाल जी बहुत खुश हुई कि अभी तक किसी को बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड नहीं मिला है जमशेदपुर से, तुम्हें मिला है तो तुमको इस फील्ड में आगे जाना चाहिए। और वो अपने हर अभियान में मुझे अपने साथ रखने लगी। 2004 में आइलैंड पीक क्लाइंब करने काठमांडू गई, तो वहाँ वैसे शॉपिंग के लिए एक शॉप में गए, साड़ी वाड़ी देख रहे थे, तो हम लोग का ड्रेस अब देख के वो लेडी ने पूछा कि आप लोग क्या ट्रैकिंग के लिए आए हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले आप तो अग्रवाल फैमिली से लगते हो। मैंने कहा हाँ। तो वो चिल्लाने लगी अपने हस्बैंड को, अरे बाहर आओ। उसने कहा क्या हुआ, आग लग गई क्या? बोले आग से भी ज़्यादा लग गई। बोले क्या हुआ? एक मारवाड़ी लेडी माउंटेनियरिंग के लिए आई है। सोचो 2004 में, आज से 20-21 साल पहले भी ये इतना पॉपुलर नहीं था, किस तरह समझा जाता था। और फिर जब 2008 में किलिमंजारो क्लाइंब करने गई, ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्शन हुआ था माउंटेनियर का, तो उसमें मैं भी थी। तो जब वहाँ से वापस लौट रहे थे तो बचेंद्र पाल जी ने कहा कि तुम माउंट एवरेस्ट के लिए फिट हो। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि हर माउंटेनियर का एक सपना होता है एवरेस्ट क्लाइंब करने का, लेकिन मेरा सपना तो कुछ और ही था। बड़ी बेटी की शादी करना, छोटी बेटी का एजुकेशन था, तो मैं चुप रह गई। फिर 1 साल बाद फिर उन्होंने कहा अभी तक झारखंड से कोई मेल ने भी एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया है, मैं चाहती हूँ तुम वहाँ की पहली महिला बनो। एंड तब भी बेटी की शादी नहीं हुई थी। तो फिर 2010 में जब बड़ी बेटी की शादी हो गई, तब उन्होंने फिर कहा, तो मैंने कहा कि हाँ अब मैं जा सकती हूँ। डरते डरते घर में कहा, तो मेरी सास ने कहा हर साल तो एवरेस्ट जाती हो। उनको लगता था हर साल कोई एक्सपीडिशन में जाते हैं तो यही एवरेस्ट होगा। एंड मेरे ससुर जी ने कहा नहीं, तुम एकदम जाओ, तुम घर परिवार की चिंता मत करो। हस्बैंड ने कहा तुम बच्चों की चिंता मत करो, तुमको जाना है। क्योंकि एवरेस्ट के लिए भी 3 महीने का वैसे ट्रैकिंग का समय था, प्लस फिटनेस के लिए तैयारी करना, प्लस घर भी देखना। तो लेकिन जब घर वालों ने कहा तो मैं तो पूरी तरह से तैयारी में जुट गई थी। और जब एवरेस्ट के लिए गई तो बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, वो सीएफ करने काठमांडू आई थी। जब वो वापस चली गई तो मेरे गाइड ने कहा कि आपकी बेटी कहाँ है? मैंने कहा वो तो सीएफ करने आई थी, वापस चली गई। तो क्या उसको एवरेस्ट नहीं जाना है? मैंने कहा एवरेस्ट वो नहीं, मैं जा रही हूँ। बोले आप क्यों मजाक कर रही है, इस उम्र में एवरेस्ट जाएगी? क्योंकि 2011 उस समय कोई भी इस एज में इंडियन मेल मेंबर भी नहीं जाते थे। अभी तो मेरे क्लाइंब करने के बाद बहुत लोगों ने क्लाइंब किया है। उस समय तो लगता था कि ये ऐसे मजाक कर रही है। और उसने बहुत ही अनमने मूड से मुझे देखा, बोला चलो ठीक है। और रास्ते में जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती, वो मुझे एकदम ऐसे देखता था, पता नहीं ये वापस चली जाएगी, ये कर नहीं पाएगी, हमेशा शंका से देखता था।
और जब मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था, बहुत तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो हमेशा बोलता था कि आप यहाँ क्यों मरने आ गए, आप वापस चली जाए, ये आपके बस का नहीं है। लेकिन मैंने तो ठान लिया था, मुझे तो जाना है, कैसे भी कंप्लीट करना है। और जब धीरे धीरे देखा कि मुझे, मेरे सारे साथी चले गए थे और मैं अकेली वहाँ रह गई थी 3 दिन, तब उसने कहा कि आप वापस लौट जाओ, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप नहीं जा पाओगे। अब ये लास्ट डे बचा है, ये 1 दिन बाकी है, आप इसमें जा सकते हो तो ठीक है। मैंने कहा नहीं, मैं चलूँगी। बहुत वीक हो गई थी, वीकनेस थी, लेकिन फिर उसके बावजूद भी मैंने कहा कि नहीं, ये आज मैं ट्राई करूँगी। और बहुत लोगों ने, मैंने देखा बेस कैंप से ऑक्सीजन ले रहे हैं, और मैं तो 23,000 में जाके मैंने ऑक्सीजन लिया था। तब उसको लगा कि हाँ, ये जा सकती है। और उसके बाद जब करीब 24,000 फीट में पहुँचे तो बहुत तेज़ से आंधी आने लगी, करीब 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तब उसने कहा कि अब आप वापस जाओ, यहाँ से एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। तो कहा नहीं, आगे तो मौत है, किसी भी तरह वापस लौटना पड़ेगा। नीचे बेस कैंप में सैटेलाइट फ़ोन से बात हो रही थी कि जो भी टीम पहुंची है सब वापस आ रही है, वापस आ जाओ। जब हम लोग वापस आके कैंप 3 पहुंचे तो देखे सारे टेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। फिर उसके बाद कैंप 2 आए, वहाँ पर नाइट स्टे किया कि दूसरे दिन वेदर ठीक होगा तो जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन भी वेदर ठीक नहीं हुआ, सब राशन ख़त्म हो गया था, ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा था। तो बोले अब वापस बेस कैंप चलो। वापस बेस कैंप आए और इतने नज़दीक से मौत को देखा था, फिर लगा अब और ऊपर नहीं जाना है। घर में सैटेलाइट फ़ोन से बात हुई, भैया को बोला तो बोला नहीं, वापस चले आओ। फिर बोला अच्छा देख लेना। फिर हस्बैंड से बात किए, बोले एकदम वापस चले आना, एकदम मत जाना है, किसी भी तरह वापस आ जाओ। लेकिन जब फ़ोन रखते रखते कहा फिर भी वेदर ठीक हो सकता है। बचेंद्री जी से बात की है तो वो बोली हर बार थोड़ी वेदर ख़राब होगा, कल तो ठीक होगा ही ना। बच्चों से बात किए, बेटियों ने कहा आप सब कुछ कर सकते हो, आप कर लोगे। एंड जब पापा से बात किए तो पापा ने कहा, सारे न्यूज़पेपर में आ गया था कि प्रेमलता वापस आ गई है, तो तुम वापस क्यों आई? जब एक कदम बढ़ाया तो पीछे क्यों हटना? मरना ही है तो कुछ करके मरो। तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है। सबको कितना विश्वास है मेरे ऊपर, इस विश्वास को मैं नहीं तोड़ूंगी। और मैंने कहा मेरे लीडर से कि नहीं, मैं भी चलूँगी। एंड फिर हम लोग आगे बढ़े। बेस कैंप में हमें 45 डेज रहना पड़ता है, एवरेज बेस कैंप, जहाँ की हाइट करीब 18,000 फीट है। वहाँ का टेम्परेचर रात में -20 तक चला जाता है रात में। इसीलिए जो भी एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं वो डे टाइम में जाके लौट आते हैं, पहुँचते हैं फोटोग्राफी करके। रात में बहुत ही कम रुकते हैं, माउंटेनियर लोग ही रुकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो हमें 45 डेज रह के भी वहाँ अप डाउन करना पड़ता था, बॉडी को एक्लेमेटाइज करने के लिए। कैंप 1 गए, वापस आए, 2 गए, फिर 3 गए, फिर बॉडी अगर एडेप्ट कर रहा है तो उसके बाद जैसे कैंप 4 रात में पहुँचे, 11-12-1 बजे कैंप 4 पहुँचे। और वहाँ से रात को हम लोग सबमिट के लिए ट्राई करते हैं। रात में करीब 10 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया और अगले दिन सुबह 9 बजे एवरेस्ट पहुँचे थे। तो रास्ते में भी जब हिलेरी स्टेप के नज़दीक पहुँचे 27,000 फीट में, तो मेरे ऑक्सीजन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की, नहीं हुआ। मैं अपने
गाइड को भी नहीं बोलना चाह रही थी, वो तो मुझे हर समय चाहता था कि वापस ही चली जाए। तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश की, उसका वाशर निकाल लिया तो और तेज़ी हवा जाने लगी। फिर मैंने मीटन पहनते हैं जो कि 4 उंगलियां एक साथ रहती है, उससे मैंने ठीक करने की कोशिश की, नहीं हुआ। तो मैंने बस जल्दी से उसको निकाल के नीचे रखा और तेज़ आंधी में वो मीटन उड़ गया और तेज़ी से हाथ की उंगलियां ठंडी होने लगी, पैर की उंगलियां ठंडी होने लगी बहुत तेज़ी से। बस मन में एक ही ख्याल आया, अब तो हाथ पांव तो कटेंगे, पता नहीं पहुंच पाऊंगी या नहीं। लेकिन बस मन में ये था ऊपर तो जाना ही है, या भगवान के घर या फिर एवरेस्ट की चोटी पर। और यही सोच के एक कदम आगे बढ़ाया और नीचे मेरा पैर एक वुलन ग्लव के ऊपर पड़ा। तो मैंने जल्दी से वो वाइट कलर का एक मीटन था उठाया, राइट हैंड का ही था, पहना और उसी से मुझे इतनी एनर्जी आ गई और वही पहन के मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया। और जो कि वहाँ के क्लाइमेट के लिए वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप कोशिश करते हो तो सारी कामयाबी आपके जिताने में लग जाती है। और मैं जब नीचे आके मैंने सबको बताया तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था, बोले ऊपर जाके लोग कहानी बनाने लगते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पूरे होशो हवास में थी और भगवान का करिश्मा देखे। जब माउंट एवरेस्ट की जो पिक्चर थे हमारी, उसमें मेरे हाथ में एक वाइट ग्लव है, एक ब्लैक है, वो भगवान ने प्रूफ भी दे दिया था। तो अगर हम लोग दिल से कुछ करना चाहें तो ज़रूर पूरा होता है। अगर पूरा नहीं होता कुछ भी तो उसका मतलब है कि उसमें हम 100% नहीं लगाते हैं, हम कहीं कोने में उसको करना ही नहीं चाहते हैं। यही मैंने महसूस किया। और एवरेस्ट कोई, मैं भी सुपर वुमेन नहीं हूँ जो मैं कर सकती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। ये तो माइंड गेम है। फिटनेस 100% चाहिए, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ 200% चाहिए। आपका हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वही मैंने रियलाइज़ किया कि डे टू डे लाइफ में हम अपना 10% भी यूज़ नहीं करते हैं। एवरेस्ट में भी मैंने 50% यूज किया होगा। अगर 100% लगा दे तो भगवान बन जाएंगे। सोचिए, हम लोग बस नहीं होगा हमसे, होगा ही नहीं, पहले ना कर देते हैं। ट्राई तो करो, होगा, क्यों नहीं होगा, ना तो है ही, अब करके तो देखो, तो सब कुछ पॉसिबल है। जो लड़की स्कूल लाइफ में 100 किलोमीटर भी नहीं, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाती थी, अब इस उम्र में, लास्ट ईयर भी मुंबई आई थी, फुल मैराथन दौड़ा था ऑन टाइम, एंड इस साल भी आ रही हूँ। तो अभी भी ये कट हो गया था, 21 किलोमीटर दौड़ रही थी, 17 किलोमीटर कंप्लीट हो गया था, 4 किलोमीटर बचा था, ब्लड रुक ही नहीं रहा था, तो भी मैंने कंप्लीट किया। तो सब कुछ पॉसिबल है, हम लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। माउंटेनियरिंग ने मुझे सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। एज इज़ नो बार, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, बहुत कुछ, पेशेंस, और आपके अंदर जो एंडोरेंस है उसको बाहर निकालना। लोग क्या कहेंगे उससे दूर रहना। लोग तो बोलेंगे, और आज के ज़माने में तो लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, जो नहीं रोकेगी, और बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई होगा, या बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि खुद ही जो भी करना है खुद ही करना है। और जितने भी मैंने सारे माउंटेन्स में गई हूँ,
तो मैंने यही रियलाइज़ किया, पहले एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया था, उसके बाद सारे माउंटेन क्लाइंब किए, तो तभी रियलाइज़ किया कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं। वही लाइफ में भी सबके अपने कोई छोटा करके आंकते हैं तो वैसा नहीं होता, सबके लिए हमें ऑनेस्ट रहना पड़ता है, सबके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सबकी अलग अलग डिफ़िकल्टीज होती है। जब मैं माउंट देनाली गई थी तब मैंने सोचा माउंट एवरेस्ट तो क्लाइंब कर ही लिया, हाईएस्ट पीक, अब देनाली क्या है। क्योंकि तेंजिंग नोरके के बेटे हमारे जामलिंग हमारे फैमिली फ्रेंड है दार्जिलिंग में, उन्होंने कहा कि आप देनाली मत जाओ, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने कहा कि नहीं, एवरेस्ट तो क्लाइंब हो गया, ये क्या डिफ़िकल्ट होगा। तो वहाँ जाके पता चला, इंडिया से तो मैं अकेली थी, कहीं जहाँ भी गई कोई फीमेल भी नहीं थी, मैं अकेली थी, 4 मेल मेंबर थे वो भी बाहर के। तो वहाँ कोई पोर्टर नहीं है, 55 केजी लोड खुद कैरी करना पड़ता है, 30 केजी बैक में एंड 25 केजी स्लेज होती है, उसमें आपका टेंट रहता है, रोप रहता है, राशन, ऑयल, बर्तन, मतलब सारा कुछ 1 मंथ का पूरा राशन, पूरा घर सोचिए खुद कैरी करना पड़ता है। और पहली बार जब मैं गई तो मुझे केवल 1000 फीट की दूरी से वापस आना पड़ा था, क्योंकि वेदर इतना ख़राब हो गया था। और जब वापस आए तो बोले कि अब आप एवरेस्ट में तो मौका मिल गया था कि दूसरे दिन भी वापस आके जाने का, वहाँ तो वो लोग बोले आप इंडिया जाओ या फिर अभी से मतलब इसका पूरा पैसा मंगाओ, फिर से 36 लाख लगेगा। एंड घर में फ़ोन किया तो हस्बैंड ने कहा ठीक है तुम ट्राई करो, लेकिन पूरा वहाँ से वापस आए थे पूरे ब्लिस्टर हो गए थे, वो स्नो बूट पहन के बहुत हालत ख़राब हो रखी थी। तो मैंने सोचा अभी तो इंडिया ही जाती हूँ, इंडिया आई एंड मैं फिर से पूरी तैयारी करके गई। 25 केजी लोड लेके मैं 21 किलोमीटर अप डाउन करती थी, जो भी समय मिलता अपना फिटनेस में लगाती थी, और फिर से मैं गई और क्लाइंब करके लौटी हूँ। तो और आप सबका इतना सुनने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी तो 7 कॉन्टिनेंट्स की बहुत लंबी कहानी है। थैंक यू सो मच। Anybody who wants to ask any question to Miss Premlata Agarwal, please sit down. So if we have another mic, just 1 second. We need a mic so that it can be floated around. माउंट विंसन वहाँ का हाईएस्ट पीक है। एंटार्क्टिका ये भी बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत सुंदर था। वहाँ की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठंड बहुत है, रात तो होती नहीं है, 12 बजे भी लगता था कि दिन ही है। और बहुत क्रेवासेस है, चलते चलते बहुत बार क्रेवासेस में गिर जाते हैं, फिर उठना पड़ता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मैं तो वेज हूँ, प्योर वेज, अंडा भी नहीं खाती हूँ, तो खाना पीना के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। कभी कभी एक बार मैंने कहा था कि मुझे राइस दे दो, तो उनको पता ही नहीं था राइस क्या है। मैंने कहा आप लोग स्पैगेटी बनाते हो, नूडल्स बनाते हो, वैसे बॉईल करके देना है। तो उन्होंने उतना ही देर में ने बोला आप अंडा भी नहीं खाते। आजकल सब लोग यही बात करते हैं कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। आपकी डाइट क्या थी?
मेरी डाइट घर का बना हुआ खाना, दाल भात सब्जी रोटी, जो घर में खाना बनता है वो। मैंने कभी ये नहीं किया कि इतना प्रोटीन लेना है, इतना कार्ब लेना है, इतना फाइबर लेना है, कभी ये सब चीज़ में मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, कभी नहीं। कंप्लीट जो पूरा जो खाना बनता है सदियों से चलता आ रहा है वही खाना खाती हूँ। मैम यू जस्ट डिस्क्राइब कि आपको इतना हैवी वेट उठा के इतना चढ़ना होता था, क्लाइम करना होता था। सो एक्सरसाइज पोर्शन पे आप किन चीज़ों पे ध्यान देते थे? मैं योगा करती हूँ, बचपन से पापा को देखते थे योगा करते हुए, तो उस समय थोड़ा बहुत करती थी। बाद में मुंगेर में जाके, मैसूर में योगा का बहुत सारा कोर्सेज किया। उसके बाद मैं रेगुलर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और रनिंग करती हूँ। मैम, आपने इतना कुछ अचीव किया है और आज हम सबको इतना इंस्पायर किया है, बट आपके लिए आपकी सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है? आपके लिए ट्रू सक्सेस क्या है जो आपने अचीव किया है? ट्रू सक्सेस, जब मैं एकदम नीचे लेवल से, जो लोग बोलते थे, जब मैं, मेरी सास को बहुत सारा ताना सुनना पड़ता था, अपनी बहू को पहाड़ में क्यों भेज देती है, आपकी बहू तो ट्रैक सूट पहन के दौड़ रही है, बहुत कुछ। तो और फिर वही लोग, जब मैं एवरेस्ट से लौटी तो 2000 करीब लोगों की भीड़ थी स्टेशन में और मेरी आरती कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे हमारी बहू को भी पहाड़ लेके जाना। और सही में उन लोगों ने भेजा भी और वो लोग एवरेस्ट बेस कैंप तक भी पहुँचे। तो मैंने खुद चढ़ के इतनी खुशी नहीं होती, जब लोगों को आप इंस्पायर करते हो तब ज़्यादा खुशी मिलती है। देखिए, हम जब भी कोई मुझे पूछता है हम कर पाएंगे या नहीं, मैं कहती हूँ मुझे खुद पे विश्वास है, तुम्हें विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं तुमको करवा के ही छोड़ूंगी। हाँ, एकदम ज्वाइन कर सकती है। माउंट एवरेस्ट के लिए तो सबसे पहले तो कोर्सेज करने पड़ते हैं माउंटेनियरिंग के, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, फिर 7000 मीटर वो सब क्लाइम करना पड़ता है। उसके बाद आपको लगेगा कि पहले कोर्स करो, तभी पता चल जाएगा कि आप माउंटेन के लिए फिट हो या नहीं। ट्रैक करना मैम एक सपना है मेरा, और उसका फर्स्ट स्टेप मैं लेना चाह रहा हूँ जी। उसके लिए कुछ सजेशन देंगे अगर कि वो फर्स्ट बेबी स्टेप अगर मैं वो आपके साथ ले सकूँ या वो कैसे करूँ? ये हमारा मनाली में होता है, मनाली लेके जाते हैं 6 डेज का। इसमें एकदम बिगनर्स को लेके जाते हैं, जिसने कभी कोई ट्रैक नहीं किया, जिनका फिटनेस लेवल एकदम 0 है, उनको लेके जाते हैं। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं।